Hello students, hope you all are healthy and welcome to my class, and this video is for class 7. Today we'll continue our fourth chapter of history, that is the Mughal period. So we'll continue with our topic Humayun today, the ruler Humayun. But before the students, I have given you some homework questions in our last class. So let's discuss the answers of that questions. Our first homework question was why it was an extremely difficult task for any ruler to rule over Indian subcontinent. And the answer is it was an extremely difficult task for any ruler to rule as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures in the medieval period. During this period, the Mughals established an empire which is the richest and most important. They expanded their kingdom from Agra and Delhi from the latter half of the 16th century. Now, our second homework question was name the Mughals who are called Great Mughals, and our answer is the first six Mughals, namely Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb, are called the Great Mughals. Now we'll continue with our topic, that is Humayun. So the reign of Humayun is divided between two parts. First 1530 to 1540, the 10 years, and the next it started from 1555 to 56. So who was Humayun? Humayun was the eldest son of Babur. हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था एंड बाबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन हुमायूं. और बाबर का सक्सेसर कौन था? बाबर को किसने सक्सीड किया? हुमायूं इन 1530 CE. द नेम हुमायूं मीन्स फॉर्चुनेट. हुमायूं जो नाम है उसका मतलब ही होता है फॉर्चुनेट, भाग्यशाली. ही डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज father. So Humayun divided the legacy of the father, the property, the whole property of the father according to the will of his father. तो अपनी पिता के इच्छा के अनुसार उन्होंने अपने भाइयों में जो भी अपनी प्रॉपर्टी थी उसको डिवाइड कर दिया. His brothers, namely Kamran, Hindal and Askari, were each given a province. हर एक भाई को, जो इनके कामरान, हिंदल, अस्कारी, सब को इनके फादर के विल के अकॉर्डिंग एक एक प्रोविंस प्रोवाइड किया गया. ही हैड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ हिज एम्पायर. फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द रूल there are some problems which started with Humayun, and the problems are like the kingdom was still without a proper system of administration. There was no proper system of administration during the reign of Humayun, and his brothers were dissatisfied with the province that they had been given. जो भी प्रोविंस उनको दिया गया था वो उससे नाखुश थे, वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, या अब वो अपनी फादर की जो विल थी उसको एग्री नहीं कर रहे थे. So they were dissatisfied with the province. Now what is province? Province, part of kingdom or a unit of kingdom, राज्य का एक हिस्सा, like territory. Now the kingdom was under threat from all side. और जो इनके kingdom थी हुमायूं की was threat from all side. इसको हर तरफ से खतरा था because he was defeated by शेर खान at चौसा. और चौसा के युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को डिफीट कर दिया in 1539 and कन्नौज in 1540, who forced him to flee to Iran. And who forced these battles of Chausa and Kannauj, in which he was defeated, was forced him to flee away, means to run away to Iran. And he spent 15 years in Iran, where he received help from Safavid Shah. और ये 15 साल इन्होंने ईरान में
अपने बिताए, जहाँ पे इनको किसकी मदद मिली? शफाविद शाह। इन दीज ईयर्स द सूर एम्पायर अंडर शेर शाह रूल्ड सुप्रीम इन इंडिया and then Humayun came back to Delhi in 1555. During this period शेर शाह had dead. Then तो इतने साल जब तक हुमायूं ईरान में था, that time there was rule of शेर शाह, and when he came back in 1555 शेर शाह had dead and the Sur empire had become weak. और इस समय तक जो सूर वंश था वो वीक पड़ गया था, एम्पायर उनका साम्राज्य वीक था, कमज़ोर पड़ गया था. एंड हुमायूं फॉट अगेन एंड बिकेम द मुगल रूलर अगेन बाय रिकैप्चर द टेरिटरीज ही लॉस्ट. और जो भी उसने अपने राज्य जो खो दिए थे उसको फिर से जीत लिया. बट ही डेड इन नेक्स्ट ईयर, सो हिज राइन वॉज वेरी स्मॉल. आफ्टर 1 year ही डेड टू फॉलिंग फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ हिज लाइब्रेरी. अपने ही महल की लाइब्रेरी से गिर के उसकी मौत हो गई. इन शेर मंडल इन पुराना किला, जो कि लाइब्रेरी कहाँ पे थी? शेर मंडल पुराना किला में स्थित थी. वहाँ से गिर के उसकी मौत हो गई. नाउ द राइन ऑफ अकबर स्टार्टेड फ्रॉम 1556 to 650. हुमायूं वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर. सो हु वॉज अकबर? अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं एंड हुमायूं वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर. ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी. ये मुग़ल शासकों में से सबसे महान शासकों में से एक थे. who brought glory to his empire. So he added fame and honor to the empire. He was also called Akbar the Great. He became king in 1556 when he was 13 years old. और ये तभी राजा बन गए थे जब इनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी. बैरम खां was allotted as regent of Akbar, and Bairam Khan was appointed as regent of Akbar. Who is regent? Regent is a person appointed to administer state because the monarch is minor. तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक एडमिनिस्टर एक अपॉइंट किया जाता है एक इंसान को जो पूरा किंगडम का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख सके. क्यों? क्योंकि जो मोनार्क है, जो किंग है, जो रूलर है, वो अभी माइनर है, छोटी उम्र का है. एंड हेयर बैरम खां वॉज अलॉटेड एज रेजेंट. हिज पीरियड ऑफ रूल कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पीरियड्स. और हम अकबर के पूरे रूल को, पूरे शासक को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन स्टार्टेड फ्रॉम 1556 to 1570. ड्यूरिंग दिस पीरियड अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट टू द रेजेंट बैरम खां. इस समय तक बैरम खां का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो रूल था, उससे वो आज़ाद हो चुके थे. एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ. आफ्टर डिफीटिंग द जनरल ऑफ अफगान फोर्सेस इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. और अफ़गान के जनरल को हरा के पानीपत के दूसरे युद्ध में ही लॉन्च मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट नेबरिंग किंगडम्स. अपने दूसरे राज्यों में, अपने पड़ोसी राज्यों में उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्ट कर दिए थे, लाइक मालवा एंड गोंडवाना, एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट of his half brother Mirza Hakim. And there was a revolt by his half brother, means उनका एक चचेरा भाई था मिर्ज़ा हाकिम, जिसने एक रिवॉल्ट, एक विद्रोह छेड़ रखा था. उसको भी इन्होंने क्रश किया. एंड उज्बेक्स ऑल्सो. लेटर ही conquered ग्वालियर, अजमेर एंड जौनपुर. He also captured Malwa in 1561. He conquered चित्तौड़ in 1568 and Ranthambore in 1569. Now the second reign or second period of Akbar started from 1570 to 85. In 1576 he defeated Rana Pratap of Mewar in Battle of Haldi Ghati. हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के थे उनको हराया. And the third period started from 1585 to 1605. During this period Akbar built a vast empire. He conquered Kashmir along with Kabul after the death of Mirza Hakim. Mirza Hakim, the half brother or cousin of Akbar. तो he conquered Kashmir. इन्होंने कश्मीर को जीता और काबुल को. आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, मिर्ज़ा हाकिम के
मर जाने के बाद कंधार वॉज ऑल्सो सीज्ड. सीज्ड मीन्स टेक होल्ड ऑफ सडनली एंड फोर्सिबली. और बाद में इन्होंने कंधार को भी सीज कर दिया या अपने कंट्रोल में ले लिया फ्रॉम द शफाविद्स. किससे? शफाविद्स से. इन द डेक्कन बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड. और इसके साथ साथ इन्होंने किसको जीत लिया? डेक्कन, बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर ऑल्सो. ही ऑल्सो एनेक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. इसके साथ साथ इन्होंने मध्य भारत के भी बहुत सारे भाग को अपने कब्ज़े में कर लिया. ही ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कंट्रीज कोर्टियर्स नेम अबुल फजल. इन्होंने अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड और दरबारी को, जिनका नाम क्या था, अबुल फजल को एक आदेश दिया टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रीजन और राइन, कि इनके पूरे रूल को, इनके पूरे कार्यकाल को वो लिखें. अबुल फजल वॉज अ हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर. अबुल फजल रोट 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स राइन. और उन्होंने अकबर के पूरे कार्यकाल को, पूरे रूल को 3 वॉल्यूम में, 3 पार्ट्स में लिखा. एंड टाइटल अकबरनामा. और उसको क्या टाइटल दिया? अकबरनामा इन पर्सियन लैंग्वेज. द फर्स्ट वॉल्यूम डील विथ अकबर्स एंसेस्टर्स. पहला जो पार्ट है उसमें इंफॉर्मेशन है अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, उनके पूर्वजों के बारे में बताया गया है. एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स टाइम. और दूसरे में उनके रूल के बारे में दिया गया है. एंड द थर्ड वॉल्यूम दैट इज़ आईने अकबरी. सो व्हाट इज़ आईने अकबरी? आईने अकबरी इज़ द थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा. अकबरनामा का ही ये तीसरा पार्ट है. इट डील्स विथ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी एंड रेवेन्यूज एंड द ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर. It also provides rich details about the traditions and culture of people living in India. Now here we finished our topic. The next topic is policies of Akbar that will continue in our next class. I have given you some homework questions that you have to complete, and don't forget to give your attendance. Thank you, class.